Vision and Navigation. I am Vanna Laura. Today we are going to study about light, shadow and reflection. So what is light? Light is the form of energy that enable us to see things. We can see around us things because of light. In a dark room we cannot see anything. अंधेरे कमरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं और जब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, ट्यूबलाइट का या फिर कोई कैंडल जलाई जाती है तो हम सभी चीजों को अच्छी भली भांति देख पाते हैं. So light is a form of energy which enable us to see various things. Light is emitted from a source such as sun and stars. So sun and stars are natural sources which provide light to us. Some artificial sources are also there which we can obtain light from there also. So what are artificial sources? They are electric bulb, tube lights, candle, a diya, or it may be a burning paper or burning wood. Students, क्या लाइट ट्रेवल करती है? सन जो हमसे इतनी दूर है वहां से लाइट हमारे पास कैसे आ जाती है? This is because light travels. Light travels in a straight path. Light takes the quickest path between any 2 points. Therefore, light travels in a straight line. This is known as a rectilinear propagation of light. Like this diagram. In this diagram, we can see a candle and 3 obstacles. Obstacle A, obstacle B and C. One eye is also there. So the light of candle will reach to the eye through the holes present in these obstacles. But we can see the light is traveling in a straight line and the part of obstacles which is opaque is not allowing the light to pass. So light is not curving or bending and going above the ABC obstacle. ABC जो obstacle है उनके ऊपर से लाइट मतलब रास्ते में obstacle आ गई तो लाइट ने अपना रास्ता बदला और वो टेढ़ी मेढ़ी होके कहीं से भी निकल के चली गई. ऐसा नहीं हुआ, वो लाइट वहीं ऑब्जेक्ट रुक गई और लाइट जो पास हो पाई उस होल में से वो स्ट्रेट लाइन में थी. सिमिलरली इन अ पाइप और स्ट्रेट पाइप हो तो हम उसमें से ऑब्जेक्ट जो है देख पाते हैं. कर्व्ड पाइप हो तो रास्ता रुक जाता है, we cannot see. So this also tell us that light travels in a straight line. Now, luminous objects and non-luminous objects. Objects that emits light and heat are known as luminous objects. For example, sun and other stars. Sun and stars are only luminous objects which are natural. Some more luminous objects which are artificial are tube light, torch, electric bulb, a candle also. Now, non-luminous objects. The objects that do not produce their own light but reflect the light emitted by luminous objects are known as non-luminous objects. For example, any objects around us, we can call them non-luminous which are not emitting light, like table, chair, your mobile, your handset, books. Moon is also non-luminous. It is we can see that moon is glowing, but the light which we can see which is coming to us through moon in any full moon day or full moon night, sorry. So that is due to the sun because moon is reflecting the light after obtaining it from sun. So non-luminous and luminous objects we have studied. हमने समझ लिए कि वह ऑब्जेक्ट जो जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है वो luminous objects होते हैं और जो लाइट एमिट करते हैं वो luminous objects होते हैं और जो लाइट को एमिट नहीं करते वो non-luminous objects होते हैं. Okay. Now another category in which we can divide objects in relation to light means वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं या फिर नहीं होने देते, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम without and getting scattered, means
वी कैन सी थ्रू देम क्लियरली। हम उन जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आर पार देख सकते हो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। जैसे एक क्लीन ग्लास, क्लियर ग्लास, क्लीन ग्लास ऑफ वाटर। तो जो कांच है, शीशा है, शीशे में और मिरर में और ग्लास में डिफरेंस क्या है? मिरर में से हम आर पार नहीं देख सकते, बट ग्लास में से हम आर पार देख सकते हैं। क्यों? मिरर जो है वो पॉलिश्ड है, वो लाइट के रास्ते को रोकता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है, बट जो ग्लास है उसमें से लाइट पास हो जाती है और हम उसके थ्रू आर पार देख सकते हैं। ओके, एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शियली। अपने अंदर से लाइट को पास तो होने देते हैं बट पार्शियली। वी कैन सी थ्रू देम बट नॉट क्लियरली। हम उनके थ्रू देख तो पाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जिनके थ्रू हम देख पाते हैं वो हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये, इसके अंदर से हम देख पाते हैं, यू कैन सी माई फिंगर बट you cannot see it clearly. So this is translucent object. Transparent, translucent, difference is that in from translucent we cannot see clearly and transparent we can see clearly. Another objects, all other objects through which we cannot see at all, like a wooden door, wall and a book, are opaque objects. Objects which do not allow us to see or allow light to pass through them at all. किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट आर शैडोज एंड हाउ डज शैडो फॉर्म? शैडो क्या होती है और कैसे बनती है? परछाई, शैडो क्या है? परछाई। A shadow is formed when opaque objects comes in between the pathway of light. लाइट के रास्ते में जब कोई भी opaque ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट के रास्ते को रोक देता है और उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट की शेप होती है उसी प्रकार की शैडो बनती है। शैडो नीड्स अ स्क्रीन। जो शैडो है हमें यहाँ एयर में या इस वैक्यूम में नहीं दिखाई देगी, यूनिवर्स में नहीं दिखाई देगी। ये क्या है? यूनिवर्स ही तो है, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देती। शैडो जो है वो हमें दिखाई देगी किसी स्क्रीन पर, किसी दीवार पर, फ्लोर पर, या कोई भी वॉल हो सकती है, टेबल हो सकती है, फ्लोर हो सकता है। सो उसके थ्रू हमें शैडो दिखाई देगी ऑन दैट। सो दैट इज, अगर जहां पे हमें शैडो दिखाई दे रही है वो क्या है? उसकी स्क्रीन है, हम उसे स्क्रीन बोलेंगे। शैडो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट इट कैन इवन मिसलीड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी परछाई को देख के उस ऑब्जेक्ट की शेप पता कर सकते हैं एक हद तक, बट कई बार हम मिसगाइड भी हो सकते हैं। जैसे कोन है, किसी कोन की जो शैडो होगी, आइसक्रीम का कोन ले लो या फिर जो बर्थडे कैप्स होती है उनकी जो शेप है वो किस प्रकार की शैडो बनाएंगी? वो मोस्टली रेक्टेंगुलर टाइप शैडो बनाएंगी जिसे हमें लगेगा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर है। वही स्फेरिकल बॉल की शैडो जो होगी वो राउंड होगी, तो वो भी हमें स्फेरिकल शेप नहीं बता रही है। तो कई बार हम इस प्रकार शैडो को देखकर एग्जैक्ट इमेज पता नहीं लगा सकते कि ये क्या है, बट उसकी शेप का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिरर। मिरर इज अ ग्लास इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड। ओके, द मिरर इज अ ग्लास इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर वन इज लाइक दैट ओनली। ग्लास में जैसे शीशा है, ग्लास होता है, उसके एक साइड जब पॉलिश कर देते हैं तो जब लाइट उस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके पार नहीं जा पाएगी, तो वो वापस बाउंस बैक होगी, तो वो मिरर है। मिरर अलाउज लाइट, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास। अ प्लेन मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। प्लेन मिरर क्या करता है? लाइट को, उसके पाथवे को चेंज कर देता है, बेंड कर देता है। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन। What is reflection? When light falls on any object, it changes its pathway or bend or bounce back. When light bounce back after falling on any object, so that bouncing back is called reflection. This enable us to see image when occur on mirror. Mirror के ऊपर जब ऐसे लाइट बाउंस होके बैक होती है तो हमें वो जो जहां से लाइट आई थी वो इमेज दिखाई देती है। ठीक है, सो दिस इनेबल अस टू सी इमेजेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज रिफ्लेक्शन।
व्हेन ऑन दिस इज व्हाट, अ मिरर। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ इंसिडेंट रे। जब किसी सोर्स से लाइट आ रही है, वो लाइट क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, और वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ऑब्जेक्ट की सरफेस पे मिरर समझ लो, ये मिरर से इंसिडेंट रे लाइट आई, टकराई और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। उसी बीच वहां पे एक उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जो जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। So now we can see, or you can see, that incident ray is making an angle with normal, angle I, and reflected ray is also making an angle with normal, that is angle R. So these I and R are what? They are nothing but they are angle of incidence. ये angle I जो है वो angle of incidence है, और angle R जो है वो angle of reflection है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। तो ये है क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वन मोर थिंग इज दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, बोथ लाइज ऑन सेम प्लेन। सो टू थिंग्स अबाउट रिफ्लेक्शन वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज कि एक तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑन अ सेम प्लेन। ओके, सो दैट वाज अबाउट रिफ्लेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।